Okay, here we have with us Neil Drolia, who has secured the third scholarship prize. Am I correct? Yes, sir. The third prize in the All India Finance Scholarship organized by SSEI, and Neil Drolia is the third winner. Okay, congratulations. आपने Thank you, sir. 2 लाख का एजुकेशन स्कॉलरशिप विन किया है एंड आई एम श्योर बहुत सारे ऐसे एजुकेशन खर्चे होते होंगे जो कि आपके माइंड में थोड़े से टेंशन कॉज कर रहे थे, उसका थोड़ा सा रिलीफ मिला होगा, इजंट इट? Definitely, sir. Definitely. So please, Neil, these moments are moments to share, moments to just open out, and ऐसे मोमेंट्स जहाँ पे अगर आप अपने बारे में खुल के बताते हैं तो क्या पता कौन और दूसरा नील होगा, ठीक है, जो आपसे इंस्पायर होके अपने लाइफ में और तेजी ले आएगा। तो आई रियली विश दैट आप अपने बारे में अपना स्टोरी बताएं। आप कहाँ से हैं, क्या किए थे, क्या पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे हैं, क्या पास्ट है आपका, क्या फ्यूचर एस्पिरेशन है, मम्मी पापा को कैसा लगा पता चला तो, फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है, हाउ इम्पोर्टेंट इज दिस स्कॉलरशिप, व्हाट डू यू प्लान टू डू विद इट। ठीक है, प्लीज सब बताइए। I am from Raipur, Chhattisgarh, and I have been pursuing CA. I am now 26 years old, and I have been facing problems in CA final in multiple attempts right now. And my Group 2 exam are in next week. Uh, from 8 May, my only two papers are left. That is DT and IDT CA final, and actually, I've decided to move towards more into finance, and I've inclined towards finance as I have studied AFM. I have studied AFM from EVO only, sir. ओके। So that have created a great interest for me in the field of finance, and wherever I was seeing this, I want to go in the deep knowledge of finance, and I thought that CFA would be a perfect career for me in future. And right now, after completing this CA final attempt of mine, I would be starting preparing for CFA level 1 exam. And sir, I am actually thinking of giving appearing in August 26th only this attempt, and scholarship the scholarship test I have applied for that only, which I would really be needed for the CFA level 1 scholarship exam fees, which is, I think, around including GST, around, I think, 160 or 170,000, due to appreciation in dollar as well right now. And definitely, I will be taking, it would also help me to take coaching from SSCI as well. I was already planning to take that, but this scholarship helped me a lot, and my financial position is as every middle class family has, it seems like that. And obviously my parents are quite happy with it, because it is going to be a great help from a CF final journey for me. And I've been right now stuck, and I'm right now a student only. I'm not currently working because uh, switching between my multiple attempts. Just that was my story, sir. सो नील, सबसे पहले ऑल्दो दिस मे नॉट बी द करेक्ट जंक्चर ऑफ स्पीकिंग, बट द पर्सन इन मी कैन नॉट स्टॉप फॉर सेइंग दैट आपने सीए फाइनल में जो एफर्ट लगाया है, ओके, सीए फाइनल का फर्स्ट अटेम्प्ट आपने कब दिया था? Sir, I have cleared CPT in my first attempt only. It was on June 2018. नहीं, आपने सीए फाइनल का फर्स्ट अटेम्प्ट कब दिया था, सीए फाइनल? CA final first attempt May 24. मई 24, ठीक है। तो इसका Yes, yes. मतलब आप करीब 2022 से सीए फाइनल में हैं, है ना? 22-23 से। Yes, I have cleared my CA Inter second group in November 22. ठीक है। सो जितनी मेहनत, जितने आवर्स अगर आप याद करें लास्ट 2 साल 2.5 साल के जो आपने सीए फाइनल में दिए हैं, ओके, पढ़ते 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 सुबह से रात तक स्ट्रगल करते करते, जो अपने उसका कुछ ग्लिम्स देखते हैं हाफ सीए टाइप के सीरीज में, ठीक है ना, वो जो दिए हैं, और डिजेक्शन होना, रिजल्ट नहीं पास आता है, लोगों के नज़रों को फेस करना,
परिवार वालों का सोचना कि क्या सोच रहे हैं, मैंने ऑल दैट गोज थ्रू, यानी वर्ड्स तो उसको बयान ही नहीं कर सकते हैं। मैं केवल एक बात बोलूंगा, सीएफए प्रोग्राम को रिस्पेक्ट दीजिएगा। सीएफए प्रोग्राम जो है, अगर उसको मन से और तन से, मेहनत से रिस्पेक्ट नहीं दिए, तो उस केस में क्या होगा ना, मतलब आज, मतलब यू वुड बिलीव, मैं समझ पा रहा हूँ आपकी आंखों में कितने महीने या सालों बाद एक खुशी आपको प्राप्त हुई होगी कल रात को। ठीक है, मतलब होता है ना, जिसका आप वेट कर रहे थे, डाउन होते होते वो एक खुशी और एक लाइफ लाइन आपको प्राप्त हुई है कल रात को। अब वो लाइफ लाइन प्राप्त हुई है तो भगवान को निराश नहीं करना है। एंड मेरा केवल ये बोलना है, सीएफए लेवल 1 की पढ़ाई बहुत अच्छे से करनी है। ऐसा नहीं कि यार सीए फाइनल तो हो गया, अब सीएफए लेवल में उतना थोड़ी प्रेशर देना है, इससे सुना था उससे सुना था। सीएफए लेवल 1 सागर है, ये आपको इतना नॉलेज देता है जिसका कोई सीमा नहीं है अगर आप इसको इज्जत से पढ़े तो। एंड आपके जो दो मेन सब्जेक्ट्स थे सीए के दौरान, एक तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एफआर, ठीक है, और दूसरा हो गया आपका कॉर्पोरेट इश्यूअर्स एनपीवी आईआरआर से रिलेटेड सीए इंटर में। ये दो टॉपिक एफएसए और कॉर्पोरेट इश्यूअर्स सीएफए लेवल 1 में आपको पहले नहीं पढ़ना है, आपको छोड़ देना है, लास्ट में पढ़ना है। आपको जो बाकी टॉपिक्स है ना, खासकर क्यूएम, खासकर इकोनॉमिक्स, ठीक है, ये टॉपिक से स्टार्ट करना पड़ेगा। फिर आप देखेंगे पोर्टफोलियो फिक्स्ड इनकम इक्विटी में अलग ही चीज है एज कंपेयर टू जो सीए में था। पर ऑफ कोर्स फायदा होगा, आपको लगेगा कि सर ये क्या अपना स्कॉलरशिप तो कॉन्ग्रेचुलेशंस का इस था और आप चालू कर दिए CFA L1 कैसे नहीं नहीं पढ़ना, सर, बिकॉज डेफिनेटली इट वुड हेल्प। बिकॉज मैं नहीं सोचता हूँ कि मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ कि जब रिजल्ट निकलेगा आपका अगस्त का, सितंबर या अक्टूबर में, तो उस समय बाई चांस, नो, नॉट पॉसिबल एट ऑल, अपने चाहते हैं वो 100% क्लियर हो। ठीक है, आई विल सेपरेटली डेफिनेटली। स्पीक टू यू ऑन हाउ टू डू दैट। बट द स्कॉलरशिप का सही यूटिलाइजेशन तब आएगा अगर इस साल के एंड में आपका सीएफए लेवल 1 प्लस हो गया है। मेरा विश है, मेरा कामना है कि सीए डेफिनेटली। फाइनल भी इसी बार निकल जाए। आप हो सकता है डेफिनेटली। अगस्त में एग्जाम देते ही एक जॉब ज्वाइन कर लें, तो आपका कैश फ्लो चालू हो डेफिनेटली। जाए। ठीक है, सच दैट डेफिनेटली। आपको जो करना है आप सीएफए लेवल 2 वगैरह और सारा का सारा चीज कैश फ्लो आते हुए करें। ठीक है, और बड़े परिवार वालों को भी पूरा रिलीफ मिल जाए कि यार अब कोई चिंता नहीं है। एंड दे आर लुकिंग एट समवेयर अराउंड 28 या 29 या 30, जहां आपके मैरिज का सोच सके। करेक्ट। नो, नहीं, नॉट दैट। नो वो ठीक है, बट मम्मी लोग को तो आता ही है ना ख्याल में, तो डेफिनेटली। डेफिनेट। ठीक है ना, एंड द ह्यूज स्ट्रेस एंड द बियर्ड दैट यू हैव, दैट कम्स आउट, यू आर रिलीव्ड, तो ऑल दैट विल हैपन एज अ रिजल्ट ऑफ ये एग्जाम सीए फाइनल का और CFA L1 का बढ़िया जाने से। एंड ऐसा लग रहा है कि भगवान आपके साथ है, बिकॉज कल जो आप स्कॉलरशिप जीते, वो केवल कैलिबर की बात नहीं थी ना, वो कैलिबर के साथ लक की लक। बात थी। ठीक है ना, तो कैलिबर प्लस लक दोनों भगवान साथ दिया है, तो अगर आप सोचते थे ना लगता है मेरा लक ही खराब है, कभी ऐसे लगता था, तो वो गलत है। ठीक है, वो एकदम भी नहीं है। डेफिनेटली। यू मे फील दैट नहीं यार मेरा अच्छा लक होता है, मैं अच्छा कर सकता हूँ। ठीक है, डेफिनेटली। नाउ टेल मी वन थिंग, कल का जो स्कॉलरशिप टेस्ट था और कल जो हुआ, पहले 4 बजे टेस्ट हुआ, उसके बाद अचानक से हमने 9 बजे किया, उसके बारे में, नॉट बिकॉज यू पास्ट और यू वन द स्कॉलरशिप, इमेजिन अगर आप स्कॉलरशिप नहीं जीतते, ठीक है, तो माने व्हाट डू यू हैव टू से मेरे बारे में, मतलब मैं नहीं चाहता हूं आप जानबूझ के बड़ाई करें, पर जेन्युइनली स्पीकिंग मैं कहाँ गलत था कहाँ सही था, मैं क्या कर सकता था, प्लीज बताइएगा। सर जैसे मैंने 4 बजे का एग्जाम दिया था, मेरा ऑटोमेटिक मतलब मेरा चालू हो गया था। एक आध 2 मिनट का डिले हुआ था उसमें। वो आई थिंक सो सबका ही हुआ था, एक आध 2 मिनट का डिले उसमें चालू होने में। तो वो तो सर मेरा चालू हो गया था, और मेरा उसमें एक्चुअली क्या हुआ था, उसमें मेरा एक क्वेश्चन मिस हो गया था अटेम्प्ट करना, और उसमें मेरे को 29 आया था, उसमें मेरे को 30 नहीं आया। हम्म। तो मैं बोला यार अब तो गया करके। फिर जब मैं आपकी वो वीडियो वीडियो देखा, जो जिसमें आप बोले कि अब वापिस होगा अटेम्प्ट, और मेरे को लगा ही था कोई ना कोई एआई यूज करेगा, जो आपने बोला था मेरे को सेम था, कि मेरे को भी लगा था कि कोई ना कोई एआई यूज किया था, पर मेरे को 28 मिनट्स कुछ लगा था, और मैंने विदाउट एआई और बिना कुछ के किया था, नॉर्मली किया था। और जब वो मैं 2-3 मिनट का वीडियो देखा, तो मैं बोला और डेफिनेटली वो अनफेयर होता अगर आप उसके बेसिस पे रिजल्ट दे। और फिर जब वो यूट्यूब वाला जब आपने किया, तो मेरे को लगा था आप यूट्यूब में नॉर्मली प्ले करोगे, पर जब आपने यूट्यूब में साथ साथ में क्वेश्चन चेंज किए, तो वो कुछ एक नई नई चीज भी थी, और मेरे को ज्यादा फेयर भी लगा वो डेफिनेटली। क्योंकि वो एट उसमें आप चीटिंग करने के चांसेस एकदम ना के बराबर थे किसी के। समझ गए, फिर भी मतलब
इनफैक्ट इस वीडियो के माध्यम से भी द पॉइंट इज दैट मेरे को नहीं समझ में आया और किस तरीके से क्या बेटर कर सकते हैं। ओके, नहीं आई सर, डिड व्हाट आई डेफिनेटली थॉट। एक ये मैथ मेरे को तो एक नया तरीका लगा ये एग्जाम लेने का, डेफिनेटली। मतलब आई हैवंट थॉट दैट यू वुड बी चेंजिंग क्वेश्चन एट एट द गो बिटवीन द टाइम। जब मार्केट्स चलता है ना, जो लोग खासकर ट्रेडिंग करते हैं मार्केट्स में, हर सेकंड मार्केट में नया एवोल्यूशन होता है। अगर चार्ट्स देखते हैं तो चार्ट्स का एवोल्यूशन, मतलब एक तरह से फाइनेंशियल मार्केट पार्टिसिपेंट को प्रिपेयर्ड होना चाहिए फॉर थिंग्स टू चेंज। ठीक है ना, दैट वे भी शार्पनेस ऑफ ब्रेन्स आर रिक्वायर्ड। और आपका ब्रेन तो बहुत शार्प है, दिख रहा है। केवल आप अभी ये जो माने डीटी आईडीटी में फंस गए हैं ना इस मेस में, इस कारण से वो दिख रहा नहीं है। पर कल जब आपने किया होगा टेस्ट तो आई कैन सी दैट आपका ब्रेन क्या चला है। ओके, फटाफट सर बोल रहे हैं। मैं तो 30-30 सेकंड के बाद बोल रहा था, इफ यू रिमेम्बर। कई कई वाले में मैं 30 सेकंड्स तक चेंज नहीं कर रहा था। इन द लास्ट 15 सेकंड्स आई वाज चेंजिंग। तो एनीबडी हु वाज एबल टू पिक इट अप, इसका मतलब डेफिनेटली द ब्रेन्स आर रियली शार्प। गुड। एक्चुअली आई हैव आल्सो स्कोर्ड एग्जामिशन इन एएफएम एज वेल। हाउ मच यू स्कोर्ड इन एएफएम? 68 सर। 68, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ग्रेट, बहुत अच्छे। थैंक यू। सो मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन फ्रॉम आवर साइड, ठीक है। एंड थैंक यू सर। अब लाइफ का साथ रहेगा आपसे पर्सनल लेवल पे। ठीक है। डेफिनेटली सर, आप डेफिनेटली। कहाँ के रहने वाले हैं? रायपुर छत्तीसगढ़ सर। रायपुर छत्तीसगढ़। वंडरफुल, ब्यूटीफुल प्लेस। ठीक है, रायपुर तो बहुत डेवलप हो रहा है, ठीक है ना। ऐसा हो रहा है कि आदमी को कहीं और जाना ही नहीं पड़े, इतनी ग्रोथ हो हाँ। रही है रायपुर में। बढ़िया, वेरी गुड। तो रायपुर कभी आना हुआ तो आपको डेफिनेटली एक बार कॉल करेंगे। ठीक है ना। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली सर। या एंड आपके मम्मी पापा को मेरे तरफ से बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, ठीक है। एंड थैंक यू सर। ऑल द बेस्ट फॉर योर सीए फाइनल एग्जाम्स नेक्स्ट वीक। सॉरी फॉर वेस्टिंग हाफ एन आवर ऑफ योर टाइम। नो ठीक है। सर, नो सर, दैट। एंड वी विल टॉक अबाउट सीएफए लेवल 1, ठीक है ना। डेफिनेटली। थैंक थैंक यू यू। सर। या बाय बाय। थैंक यू सर।